Welcome to the Network Security course. Currently, we are in section 4, which is Network Security Topics. और हमने Network Security Topics में Enterprise Network Architecture को डिटेल में एग्जामिन किया और अब हम एक एक करके component wise we are discussing those topics in more detail. When we looked at the Enterprise Network Architecture, what we tried to understand was that एक typical organization के अंदर नेटवर्क का लेआउट किस तरीके से होता है और बिकॉज ऑफ दैट लेआउट वेयर इन द नेटवर्क स्पेसिफिकली डू वी नीड टू एड्रेस सिक्योरिटी और कहाँ हमें डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर एजेंट्स या मेथडोलॉजीज और प्रैक्टिसेस इख्तियार करनी पड़ती हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को सिक्योर कर सकें. एंड वी हैव लुक्ड एट सेवरल एरियाज इन डिटेल एंड दैट इंक्लूड्स फायरवॉल्स and IDS and IPS as well. हमने firewalls जब देखे तो हमने देखा कि उनकी placement कहाँ हो सकती है, उनका basic function क्या है, किस तरह की firewalls जो हैं वो available हैं ताकि हम use कर सकें, and these can be in the form of an appliance or they can also be a firewall which runs on a server or on a computer. We also looked at IDS and IPS जिसको हम combine करके IDPS कहते हैं, Intrusion Detection and Prevention Systems. And IDPSs also come in different varieties. They have different functions and they have different mechanisms जिसके साथ वो काम करते हैं. For example, if you remember, तो हमने anomaly based detection को भी देखा, हमने stateful protocol analysis को भी study किया, and we really looked at all the types of IDPSs. Now, our next topic जो हम आज शुरू करेंगे is a very important and a very interesting topic, and that is web application security. जब हम नेटवर्क को बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमने DMZ यानी demilitarized zone के बारे में स्टडी किया है. So the demilitarized zone hosts servers and applications running on those servers which are openly accessible from the outside world. एक typical example है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वेब सर्वर है दैट इज प्लेस्ड इन द डीमिलिटराइज्ड जोन. अब डीमिलिटराइज्ड जोन में जो वेब एप्लीकेशन है ऑब्वियसली सिंस इट इज एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल यूजर्स will come into the perimeter router and then the firewall and then they will be directed towards these web server which is lying in the DMZ. तो वहाँ पे हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि क्योंकि एक्सेसिबल है ये सर्वर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, देन वी हैव टू मेक श्योर कि ना सिर्फ सर्वर प्रोटेक्टेड है लेकिन जो उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है विच इज़ द वेब एप्लीकेशन, विच इज़ द एप्लीकेशन विच इज़ एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड टू द इंटरनेट, उसकी अपनी सिक्योरिटी की एनहांसमेंट्स के स्टेप्स और मैकेनिज्म्स हैं जो कि हम आज के लेक्चर में एग्जामिन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस की जो सिक्योरिटी है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ दोज एप्लीकेशंस. सो इफ आई वर टू आस्क यू कि एप्लीकेशंस इन जनरल जो कि एक सर्वर पे रन करती हैं which are obviously made by configuring software, जो एप्लीकेशंस हैं ना सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बट एप्लीकेशंस इन जनरल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, इट कुड बी अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस इन जनरल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर to this question of what is the importance of applications for an organization would be that applications are the engine really which enable us to automate our functions and processes जो कि एक organization ने implement करने होते हैं to conduct its business. Now different companies and different organizations have different processes and different steps that they take to run their business. और इसका एक तरीका ये है कि आप मैन्युअली जो है ये काम करें
तकरीबन more than one decade ago, maybe 20 years ago, पाकिस्तान के अंदर जो banks थे, for example, most of them were running their business by manual registers and by manual steps. Now, today, if you walk into a bank, there are hundreds of applications which are running. There would be a data center which hosts servers. Every employee of the bank will normally have a computer. They will have access to email. They will have access to the applications which run the bank. एक बैंक के अंदर there are several applications which run. For example, there are some core banking applications जो कि तमाम बैंक के जो फंक्शंस हैं उसके रन करने के लिए ज़रूरी है. उसके अलावा there is a treasury application. And if you take a list, there are so many applications which are important for the organization, just like the credit card applications and several others. If you go to a telecom company, what are the applications that would be running over there? There would be a CRM, a customer relationship management system. There would be a billing system, which is very important for a telecom company. There would be another system which provisions the services. एक customer जो walk in करता है into a telecom company and asks for a service, then the network has to be configured or has to be provisioned for that particular customer ताकि उसको service मिल सके. So if you walk into different types of organizations, you will find different types of applications. These applications integrate with hardware as well, and they work on software as well. For example, in a bank, there are ATMs, जिससे जाके आप cash निकालते हैं, which are automated teller machines. And there would be a software which collects the performance data of the ATM machines and reports it for the management purposes and for the operations purposes. Is the ATM machine up? Is it running? Is it down? Is there an alarm? Has somebody opened the door of the ATM in an unauthorized manner? All of these functions need to be reported to the operations staff and to the management so that they can run their business better. तो ये बात तो हमने establish कर ली कि चाहे जिस मर्जी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, टेलीकॉम कंपनी हो, बैंक हो, एक पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एप्लीकेशंस बनाते हैं. अब क्योंकि ये एप्लीकेशंस इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं टू रन द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that is why the security is also very important. Applications can have different levels of security, meaning that they can have differing levels of impact for the organization depending कि वो application करती क्या है. एक application जो कि core banking application है एक बैंक की, जब भी आप विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट से, एक चेक लिखते हैं, अपने बैंक में जाते हैं, एक चेक लिखते हैं फॉर 50,000 रुपीज फॉर एग्जांपल, एंड यू विड्रॉ दैट मनी, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली एंटर्ड इनटू अ कोर बैंकिंग एप्लीकेशन सिस्टम. एंड आफ्टर डूइंग द वेरिफिकेशंस, जो टेलर है या जो बैंक का स्टाफ मेंबर है, व्हाट ही डज इज ही लॉग्स इन इनटू द एप्लीकेशन, ही विल चेक योर बैंक अकाउंट नंबर, ही विल चेक योर सिग्नेचर. आप जब चेक प्रेजेंट करते हैं तो ही विल टैली और चेक कि आपका जो सिग्नेचर है वो मैच कर रहा है कि नहीं जो सिग्नेचर सिस्टम में मौजूद है, और इस तरीके से वो बाकी स्टेप्स लेगा. इवेंचुअली आपको 50,000 रुपीज कैश काउंटर के ऊपर पकड़ाएगा एंड दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बैलेंस. अब ये जो फंक्शन है, दिस इज ए कोर बैंकिंग एप्लीकेशन and we need to make sure कि ये जो core banking application है, since it's dealing with money, तो ये secure होनी चाहिए, यानी कि चाहे fraud से या intentionally या unintentionally
no one should be able to use the application in an unauthorized manner or for fraudulent purposes. Now, we have been able to establish that different applications different purposes के लिए इस्तेमाल होती हैं and they may require differing levels of security. There may be some applications जिनको security की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है because there may be only a few users जो कि उस application को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि उस application की इस्तेमाल में कोई financial impact जो है वो नहीं आ सकता. अगर अटैकर उस एप्लीकेशन को अटैक करके उसका कंट्रोल ले भी ले तो देयर इज नॉट मच हार्म दैट द यूजर कैन डू, बट देयर मे बी सम एप्लीकेशंस व्हिच इफ द अटैकर गेन्स एक्सेस टू देम द अटैकर कैन डू अ लॉट ऑफ हार्म. एंड एन एग्जांपल इज ए क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन. अगर एक क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन का कंट्रोल या एक्सेस अनऑथराइज्ड तरीके से मिल जाए एक अटैकर को, then that attacker would get all of the information related to credit cards and sensitive information related to the customer details जो उसको नहीं मिलनी चाहिए. और इससे regulations जो हैं हमारे regulatory bodies they could impose fines and restrictions as well. So now we see कि what are application security risks. Attackers can potentially use many different paths through your application to do harm to your business or organization. Each of these paths represents a risk that may or may not be serious enough to warrant attention. Let's take an example. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स जो हैं एक अटैकर बहुत सारे पाथ्स इख्तियार कर सकता है. There is a threat agent यानी कि there is an attacker. There are attack vectors meaning कि अटैक को किस डायरेक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. Then obviously the attacker is going to try and exploit the security weaknesses. To prevent attackers from exploiting those security weaknesses, we have security controls. And then if the attacker does manage to attack, then there would be technical impacts and business impacts. So there are different ways and mechanisms जिससे कि एक अटैकर जो है अटैक कर सकता है हमारे एप्लीकेशंस को और हमें तमाम सिक्योरिटी के मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं ताकि हम ब्लॉक कर सकें द पाथ ऑफ द अटैकर. उसको कोई भी रास्ता ना दें कि वो किसी रास्ते से भी एंटर करके अटैक कर सके. फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स sometimes these paths are trivial to find and exploit and sometimes they are extremely difficult. Similarly, the harm that is caused may range from nothing all the way through putting you out of business. To determine the risk to your organization, you can evaluate the likelihood associated with each threat agent, attack vector, and security weakness and combine it with an estimate of the technical and business impact to your organization. Together, these factors determine the overall risk. लिहाजा हमने ये देखा कि पाथ जो अडॉप्ट करता है अटैकर वो सिंपल सी भी हो सकती है. इट कुड बी वेरी ऑब्वियस कि एक एप्लीकेशन को अटैक करने के लिए वो किस पाथ या किस मैकेनिज्म को या किस जगह से ओपनिंग देखते हुए एंटर करने की कोशिश करेगा. और ये भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स है तो इन दैट कॉम्प्लेक्सिटी इट कुड बी वेरी हार्ड टू फाइंड आउट दैट वेयर इज द वल्नरेबिलिटी और द वीकनेस which will be exploited by the attacker. Overall, जब सम टोटल को हम देखते हैं अपनी एप्लीकेशन को तो हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो वीकनेसेस हैं क्या लाइकलीहुड है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और फिर उसको कंबाइन करते हैं with the impact, either a technical impact or a business impact, and with that while combining this information we try to determine कि रिस्क जो है वो किसी एक वल्नरेबिलिटी का कितना है, कम है या ज़्यादा है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम.
application security is no longer a choice between increasing attacks and regulatory pressures. Organizations must establish an effective capability for securing their applications. Given the staggering number of applications and lines of code already in production, many organizations are struggling to get a handle on the enormous volume of vulnerabilities. OWASP, Open Web Application Security Project, recommends that organizations establish an application security program to gain insight and improve security across their application portfolio. तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो है एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस टू रन देयर बिजनेस. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अटैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एज दीज एप्लीकेशंस बिकम मोर एंड मोर ओपन ताकि यूजर्स इनको यूज कर सकें. इसकी एक एग्जांपल है मोबाइल के ऊपर जो हम बैंकिंग की सर्विसेज इनेबल करते हैं. टिपिकली पहले ये होता था कि आप बैंक के पास जाते थे अपनी सर्विसेज लेने के लिए, लेकिन अब जो कस्टमर है वो खुद बैंक के पास जाए बगैर, विदाउट वॉकिंग इनटू अ बैंक, द यूजर कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज बाय लॉगिंग ऑन इनटू द इंटरनेट, और इवन मोबाइल के ऊपर भी आप बैंकिंग के सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं. So now all of these customers are accessing the banking services, and obviously this is a service that needs to be hosted on a web application, running on a web application server. तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि रेगुलेटरी प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं. जो रेगुलेटरी प्रेशर है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेशन जो है वो हर इंडस्ट्री में कंडक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स को रेगुलेट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, विच एस्टैब्लिशेस द रूल्स एंड मेक श्योर कि द बैंक्स आर वर्किंग इन अ मैनर विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स. और हम ये देखते हैं कि टेलीकॉम एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में वी ऑल्सो हैव PTA, विच इज पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, एंड दैट एस्टैब्लिशेस द रूल्स एंड मेक श्योर दैट द टेलीकॉम कंपनीज आर वर्किंग विद इन अ फ्रेमवर्क so that the interest of the customer, जो कस्टमर के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं और अब्यूज ना हो. और इसके अलावा पाकिस्तान के जो लॉज ऑफ द लैंड हैं उसको फॉलो किया जाए बोथ बाय द टेलीकॉम कंपनीज एंड बाय द बैंक्स, एंड देन वी हैव अदर रेगुलेटरी बॉडीज फॉर अदर इंडस्ट्रीज. तो ये तीनों चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक तरफ एप्लीकेशंस जो हैं वो कंपनीज अडॉप्ट करती जा रही हैं और IT इन्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. इसके अलावा अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं. और थर्ड चीज़ ये है कि रेगुलेटरी प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने नेटवर्क्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को सिक्योर करें, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेशंस. सो अचीविंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी requires many different parts of an organization to work together efficiently, including security and audit, software development, and business and executive management. It requires security to be visible so that all the different players can see and understand the organization's application security posture. It also requires focus on the activities and outcomes that actually help improve enterprise security by reducing risk in the most cost-effective manner. And some of the key activities in effective application security program हम उसको अभी देखेंगे. तो OWASP जो है, Open Web Application Security Project, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद डिटेल्स देखेंगे, वो प्रपोज करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए. एक पूरा इनिशिएटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर इवैल्यूएट किया जाए एप्लीकेशन सिक्योरिटी को और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जाएं. वो स्टेप्स क्या हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. और एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को रन करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क टुगेदर. द टीम विच कंडक्ट्स द डेवलपमेंट
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम, उनको भी काम करना पड़ेगा। ऑडिट की जो टीम है जो कि ऑडिट करती है और एप्लीकेशंस को और ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को, उनको भी मिलकर काम करना पड़ेगा। आईटी सिक्योरिटी की जो टीम है उनको भी मिलकर काम करना पड़ेगा। एंड देन ऑफ कोर्स द बिजनेस यूजर्स and the executive management, all of these entities need to work together to achieve the objectives of the application security program. और फिर इसके अलावा OWASP जो है, Open Web Application Security Project, they recommend कि there should be visibility as well. Open visibility होनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या क्या steps लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा focus is required. आपको फोकस करके इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंप्रूव हो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि यू नीड टू गेट स्टार्टेड, एस्टैब्लिश एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड ड्राइव अडॉप्शन, यानी कि आप उस दूसरी टीम्स को उसका हिस्सा बनाएं। कंडक्ट अ कैपेबिलिटी गैप एनालिसिस, comparing your organization to your peers to define key improvement areas and an execution plan. Gain management approval and establish an application security awareness campaign for the entire IT organization. तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो ये है कि आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें, उसका आगाज़ लें। उसके लिए आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को जब शुरू करेंगे तो ये जिन एंटिटीज़ का हमने जिक्र किया उनको आप बीच में शामिल करें, विच इंक्लूड्स आईटी जो डेवलपमेंट टीम है, इट इंक्लूड्स आईटी सिक्योरिटी, इट इंक्लूड्स ऑडिट, इट इंक्लूड्स द बिजनेस यूजर्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। उसके अलावा द थिंग्स दैट नीड टू बी डन आर दैट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द बेस लाइन, जिसका मतलब ये है कि वेयर डू यू स्टैंड in application security. Are you very good and very protected? Are you just okay or are you very vulnerable? यानी कि आपके बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए। और उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप एक गैप एनालिसिस करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, वेयर डू यू रेट योरसेल्फ और वेयर डू यू स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और उसके अलावा यह है कि एक अवेयरनेस का बाकायदा कैंपेन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोगों को पता चल सके कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या है, और इसके अलावा उसके अवेयरनेस कैंपेन के डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म्स हैं ताकि लोगों को ना सिर्फ इन्वॉल्व किया जा सके बल्कि लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकें आप कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इन्हांस करने के लिए वो क्या रोल अदा कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप इन द एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इज द रिस्क बेस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच। रिस्क बेस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है? आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज योर एप्लीकेशन पोर्टफोलियो फ्रॉम एन इनहेरेंट रिस्क परस्पेक्टिव। क्रिएट एन एप्लीकेशन risk profiling model to measure and prioritize the applications in your portfolio. Establish assurance guidelines to properly define coverage and level of rigor, यानी काम जितना required है that is required. Establish a common risk rating model with a consistent set of likelihood and impact factors reflective of your organization's tolerance for risk. Whenever in IT security we want to prioritize कि कौन सा जो इफेक्ट है उसका ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो हम रिस्क बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं विद इन IT सिक्योरिटी। इसका रीजन ये है कि सिक्योरिटी को जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, देयर मे बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, देयर मे बी अ नंबर ऑफ एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन। हाउएवर वी नीड टू डिटरमिन कि कौन से ऐसे वल्नरेबिलिटीज हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट अगर वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट किए जाए, अटैकर कर ले, अटैक करने में कामयाब हो जाए, उसका इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा।
रिस्क का प्रोफाइल जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हो सकता है हमारी 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और उन 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर सारा मिला के देयर मे बी 50 vulnerabilities. However, we may be able to determine that there are only 3 such vulnerabilities which we need to protect against because their impact on the organization can be extremely high. तो इस तरीके से जब हम अपनी एप्लीकेशंस को उठाते हैं, हम उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग परफॉर्म करते हैं, कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और रेटिंग देते हैं उनको और बाकायदा एक एवेल्युएशन के तौर पे इवेल्युएट करते हैं कि एप्लीकेशंस के अंदर तमाम जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं कौन सी ऐसी हैं जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर और सीरियस हो सकता है और फिर जाहिर है कि आप उन वल्नरेबिलिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले कदम उठाएंगे. So that is the risk-based approach. In IT security, whenever you want to prioritize कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, जो पहले होना चाहिए, उसमें हम risk-based approach को adopt करते हैं. The next step in our application security program is enable security with a strong foundation. So establish a set of focused policies and standards that provide an application security baseline for all development teams to adhere to. Define a common set of reusable security controls that complement these policies and standards and provide design and development guidance on their use. Establish an application security training curriculum that is required and targeted to different development roles and topics. अब हम जब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर हमने स्टार्ट भी कर लिया, अवेयरनेस भी क्रिएट कर ली और रिस्क प्रोफाइलिंग करके हमने प्रायोरिटाइज भी कर लिया कि सबसे सीरियस थ्रेट्स कौन से हैं. उसके बाद आप सिक्योरिटी को इनेबल करेंगे फॉर द एप्लीकेशंस और उसके अंदर ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये स्टेप उठाएं कि आप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाएं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रूल्स डेवलप करें, कुछ गाइडलाइंस ऐसी बनाएं जो कि आप अपनी डेवलपमेंट टीम जो कि उन एप्लीकेशंस को डेवलप कर रही है या उन यूजर्स के लिए जो कि उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डेवलप करेंगे और उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से एक बाउंड्री डिफाइन होगी या आप कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रिकमेंडेशंस डिफाइन होंगे कि आपने एप्लीकेशंस को किस तरीके से सिक्योर करना है. आफ्टर यू डिफाइन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आप वहां पे नहीं रुकेंगे. देन यू विल डिफाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो कि ज़रूरी हैं और जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन पॉलिसीज प्रोसीजर्स को, यानी कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में जो आपने स्टेप्स बताए हुए हैं कि जो लेने हैं आपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए, फिर आप उनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी आइडेंटिफाई करें. एंड देन फाइनली यू नीड टू लॉन्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जिन लोगों ने एम्बेड करना है सिक्योरिटी को विद इन द एप्लीकेशन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दे विल बी ट्रेन्ड एंड दे विल नो द मैकेनिज्म्स एंड द स्टेप्स टू सिक्योर द एप्लीकेशंस. वी विल हैव टू ट्रेन देम. और आई वुड लाइक टू ऐड कि ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. यूजुअली द प्रोग्रामर्स एंड द डेवलपर्स जो कि they graduate from university, normally the secure coding practices are not taught in the colleges and universities to a great extent. And in the real world जो है कई दफ़ा हम ऐसी applications भी develop कर रहे होते हैं जिसमें emphasis place नहीं किया जाता कि उन applications को secure किया जाए. And then organizations obviously face challenges जब वो application use होती है और उसमें flaws होते हैं, vulnerabilities होती हैं and they may be attacked. And by those attacks, the organizations will face an impact. The next step is to integrate security into existing processes. So you define and integrate security implementation and verification activities into existing development and operational processes. Activities include threat modeling, secure design and review,
secure code and review, pen testing, remediation, etc., and provide subject matter experts and support services for development and project teams to be successful. So after we have established the foundations of enabling and embedding security into our applications, हमें फिर जो development और operations के जो processes हैं उनको एग्जामिन करना पड़ता है और हमें पूरी लाइफ साइकिल के अंदर सिक्योरिटी को एम्बेड करना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स दिस कैन इंक्लूड थ्रेट मॉडलिंग, सिक्योर डिजाइन एंड रिव्यू, सिक्योर कोड एंड रिव्यू, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड दीज मैकेनिज्म्स. तो तमाम जो हमारी लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट्स की या प्रोजेक्ट्स की, उनके अंदर हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि कोई ऐसा एरिया हम ना छोड़ दें जहां पे हम सिक्योरिटी को ओवरलुक कर जाएं या जहां पे हम सिक्योरिटी को एम्बेड ना करें. फाइनली जब हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इन सारे स्टेप्स के बाद हमें मैनेजमेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है. सो यू मैनेज विद metrics, drive improvement and funding decisions based on the metrics and analysis data captured. Metrics include adherence to security practices, activities, vulnerabilities introduced, vulnerabilities mitigated, application coverage, etc. And analyze data from the implementation and verification activities to look for root cause and vulnerability patterns to drive strategic and systemic improvements across the enterprise. So while implementing the application security program, the last step is to provide management with the visibility, यानी कि आपको management को results दिखाने पड़ेंगे. और ये जो results हैं आप metrics के साथ, यानी कि कुछ figures, numbers के साथ आप demonstrate करें. For example, कितनी applications available हैं, कितनी applications के अंदर total assessed vulnerabilities थी और कितनी उन assessed vulnerabilities में से coverage आपने provide किया है, यानी कि जिनको आपने secure किया है, अभी भी कितने threats हैं and what is the potential impact of those threats. So you have to convert these concepts into numbers and figures to show your management certain metrics which will make it helpful for the management to make decisions to further protect the organization. और इसके अलावा what is recommended is that the root cause is always established. अगर कुछ security flaws आ रहे हैं एक application को develop करते हुए तो we need to analyze कि वो flaw किस वजह से आया. It could be because of lack of training of the developers. It could be because of certain processes जो कि follow की जा रही हैं जिनको शायद change करने की ज़रूरत है. So there could be many reasons and hence when we establish the root cause so that helps us to make strategic decisions, यानी कि long term में हम decisions ऐसे लेते हैं which helps us to improve the security posture and the protection against threats. So let's look at a typical application security threat. Executing commands with the privileges of a compromised application. If an attacker takes over an application, the attacker can execute commands with the privileges of that application. And many applications run with super user or root privileges. अगर एक attacker एक application के अंदर break in कर जाता है, तो obviously that user or that attacker rather will be able to execute all the functions which that application is entitled to. और उस application जो है, normally applications run with a super user kind of a privilege, meaning they have full control. And if an attacker gets access to that application, then the impact could be tremendous and could be quite serious. इसलिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो simple से steps हैं start off करने के लिए, what are the simple steps we can take to harden or protect applications. So when we talk about hardening applications, उसमें basic चीज़ें ये आती हैं कि आपने सबसे पहले physical security को ensure करना है, backups लेने हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करना है, और इसी तरह के और बेसिक स्टेप्स हैं. एंड देन वी हैव टू ट्राई एंड मिनिमाइज द एप्लीकेशंस एज वेल. देयर आर सम मेन और कोर एप्लीकेशंस, then there are some subsidiary applications, and all of this should be guided by security baselines. अब सबसे पहले जो basic steps हैं जो हम लेंगे to secure our applications, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं. आप उसकी जो physical security है, यानी कि सर्वर अगर डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है तो आप डेटा सेंटर की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे so that an attacker does not have physical reach, और वो for example, attacker cannot walk up to a server and try to copy information from its hard disk. तो physical security, access controls, ये जो steps हैं सबसे पहले तो obviously आप वो लेंगे. इसके अलावा आप हमेशा servers का backup लेते हैं, because servers can fail. There can be a power fluctuation which can bring down the server. And security में availability का जो concept है वो भी हमने study किया है कि security also means availability, meaning that the application should be available. So if something brings down the server or the application, then we need to make sure कि हमारे पास backup है, because there could be very sensitive and important information which is part of that application. Now, if that server goes down, we could lose all the information which is part of that application. और ये हो सकता है कि वो बहुत critical और sensitive और important information है जो कि हम lose कर जाएंगे. So there are always chances of hardware and software to fail. That is why the backups are continuously taken. और आप जो है daily backup भी लेते हैं, weekly backup भी लिया जाता है, इस तरीके से incremental backups भी लेते हैं. And there are different ways in which backups are taken. और जब backup लेते हैं तो उसमें कुछ backup जो है उसको live data storage में रखा जाता है. For example, on a SAN, which is a storage area network, and then gradually जैसे वो backups पुराने होते जाते हैं तो हम उनको transfer कर देते हैं on tape, and we take the fresh backups on the storage area network. So there are different mechanisms के backups किस तरीके से लिए जाते हैं. Backups के अलावा जो mechanisms हैं to secure or to harden our applications, उसमें एक ये भी आता है कि जो application है obviously it is running on a server, और जो vulnerabilities सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगी, those present gates और doors जिसके थ्रू अटैकर्स आके एप्लीकेशन को अटैक करेंगे. तो एप्लीकेशन जो है वो ऑब्वियसली एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में रन करती है. तो जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट नीड्स टू बी हार्डन्ड एंड प्रोटेक्टेड एज वेल. फॉर एग्जांपल, हम मेक श्योर करेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, which attackers can use to access the server. इसके अलावा एक टिपिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है आईडी मैनेजमेंट का, which is the identity management. यानी कि इट्स पॉसिबल कि एक एप्लीकेशन जो है उसके 10 यूजर्स हैं. There is one administrator, there are 5 executives, and then there are 5 key punch operators or basically simple operators. हर यूजर का एक आईडी है जो कि यूनिक होना चाहिए. उसके अलावा उसको पासवर्ड जो है दिया जाता है जिससे के थ्रू वो लॉगिन और पासवर्ड एंटर करके एप्लीकेशन की एक्सेस को हासिल करेगा. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो प्रिविलेजेस आपने असाइन करने हैं उस यूजर को, वो ऑब्वियसली आप मेक श्योर करेंगे कि उस लॉगिन के अगेंस्ट प्रॉपर प्रिविलेजेस असाइन हो. एक यूजर जो कि जिसने डेटा एंट्री करनी है उसको सुपर यूजर का एक्सेस नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगेन दिस ओपन्स द डोर एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू गो बियॉन्ड देयर ऑथराइज्ड यूज. जो प्रॉपर यूज है, जो उनको ऑथराइज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब फंक्शन, वो उससे आगे जा सकते हैं. तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जब हम आईडीज बनाते हैं तो उनके प्रिविलेजेस को प्रॉपरली असाइन करें और ये एस्टैब्लिश करें फ्रॉम द सुपरवाइजर ऑफ दैट यूजर कि इस यूजर को प्रिविलेजेस कौन कौन से देने हैं या कौन सा रोल देना है, ताकि उस एप्लीकेशन में वो अपना जॉब फंक्शन सिर्फ परफॉर्म कर सके और उससे बढ़ के अपने प्रिविलेज से, अपनी ऑथराइजेशन से ज़्यादा कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर सके. सो व्हेन वी लुक एट हार्डनिंग एप्लीकेशंस, वी ऑल्सो सी that we need to create
सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशंस। इसका क्या मतलब है? You would use baselines to go beyond default installation configurations for high value targets. Avoid blank passwords or well-known default passwords. Install patches for all applications. Minimize the permissions of applications. If an attack compromises an application with low permissions, it will not own the computer. तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि आप जो एप्लीकेशंस अवेलेबल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको थॉरली रिव्यू करें और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें. देयर आर ऑलवेज मेन एप्लीकेशंस और कोर एप्लीकेशंस एंड देन देयर आर सब्सिडरी और सेकेंडरी एप्लीकेशंस जो कि टूल्स होते हैं या कनेक्टर्स होते हैं जो कि मेन एप्लीकेशंस को इंटरफेस करने के लिए यूज़ होते हैं. तो आपकी जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिक्योर दोज एप्लीकेशंस. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फेज आउट सर्टन एप्लीकेशंस जो कि रिडंडेंट हैं, जो कि पुरानी हो चुकी हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं है, एंड वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज एंड हैव अ फ्यूअर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट आर सिक्योर. इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जब आप हार्डन करते हैं एप्लीकेशंस को तो आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से आगे आपको जाना पड़ेगा और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो रही है, जाहिर है कि जब एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो इंस्टॉल होते वक्त कॉन्फ़िगर होती है और कॉन्फ़िगर करते वक्त आप डिफ़ॉल्ट्स जो हैं उसकी तरफ ना जाएं बल्कि स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करें ताकि आप सिक्योर एप्लीकेशन को चला रहे हैं. इसके अलावा वी सी कि हमें पैचेस इंस्टॉल करने चाहिए. जब भी आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर लेते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो जिन वेंडर्स ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया होता है दे कीप गिविंग यू पैचेस टू इम्प्रूव सिक्योरिटी. ये अडोबी के लिए आते रहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए आते रहते हैं. जो एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर में जो यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर हमारे पास पैचेस की रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंस्टॉल करें. तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं और ये नहीं पता होता उस वक़्त कि उसमें कौन सी सिक्योरिटी की गैप है. नाउ एज सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड तो उसमें या तो अटैकर्स वो वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ के अटैक करते हैं या फिर एथिकल वाइट हैट अटैकर्स जो हैं या एथिकल वाइट हैट पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो हैं दे आर एग्जामिनिंग सॉफ्टवेयर जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है उसको एग्जामिन वो करते हैं और ढूंढते हैं कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं एंड दिस इज़ फॉर अ गुड पर्पस. इसलिए उनको कहा जाता है एथिकल वाइट हैट हैकर्स. वो हैक करते हैं, दे ट्राई टू ब्रेक इन इनटू सॉफ्टवेयर एंड दे ट्राई टू फाइंड द वीकनेसेस ताकि उसको कवर किया जाए. अब चाहे एक अटैकर वल्नरेबिलिटी को अटैक करे एंड देन दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल या एक एथिकल वाइट हैट हैकर जो है वो प्रोएक्टिव मेजर के तौर पे ढूंढ रहा है कि कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहाँ गैप्स हैं सॉफ्टवेयर में. जब ये पता चलता है कि एक गैप है तो उस गैप को कवर करने के लिए पैच रिलीज होता है ताकि पैच को इंस्टॉल किया जाए और एप्लीकेशन के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हो उस सिक्योरिटी गैप को क्लोज करने के लिए और अटैकर को रोकने के लिए वो पैच रिलीज किया जाता है. एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट पैचेस आर एक्चुअली इंस्टॉल्ड ताकि ये वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो फिर वल्नरेबिलिटी ना रहे और उसको क्लोज किया जाए. नाउ एज वी मूव ऑन इनटू हार्डनिंग ऑफ एप्लीकेशंस हम ये देखते हैं कि वी नीड टू ऐड एप्लीकेशन लेयर ऑथेंटिकेशन, authorizations and auditing more specific to the needs of the application than general operating system logins can lead to different permissions for different users. And you also implement cryptographic systems for communication with users. सबसे पहले जो एप्लीकेशन की परमिशंस हैं उनको हमें चाहिए कि हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें. जितनी रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस होंगी यूज़र के पास, अगर अटैकर अटैक कर लेता है तो उसको उतना ही नैरो पाथ मिलेगा जिसमें वो ऑपरेट कर सकता है. इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर की इंडिपेंडेंट ऑथराइजेशन और ऑडिटिंग जो है और परमिशंस जो हैं वो इनेबल होनी चाहिए. यानी कि
the application should not be relying on some other layer or relying on the operating system कि वो default की तमाम जो कि settings हुई हुई operating system में application layer के ऊपर it is relying on the operating system to get the authorizations. The application should have its own auditing, its own authorizations and its own permissions. And finally, हम ये देखते हैं कि हमें क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, या तो ट्रांसमिशन में, अगर यूजर्स जो हैं एक वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें कुछ सिक्योर एरियाज हैं, तो देन ऑफ कोर्स वी शुड यूज HTTPS फॉर एग्जांपल. बट एप्लीकेशंस का जो डेटा स्टोर होता है दैट शुड आल्सो बी स्टोर्ड विद इंक्रिप्शन, ताकि उस डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ना किया जा सके. सो हाउ डू वी सिक्योर कस्टम एप्लीकेशंस? कस्टम एप्लीकेशन क्या होती है? It is written by a firm's programmers and usually they are not likely to be well trained in secure coding. एक जो key principle हम generally adopt करते हैं वो ये होता है कि never trust the user input and always filter user input for inappropriate content. So custom applications are those applications which are developed and tailored for a specific purpose. So there are off-the-shelf software which are developed and they are generally available, and there is custom application जो कि खास तौर पे एक purpose के लिए बनाया जाता है. Custom application के जो developers हैं, they are even more less likely to be trained in general security coding practices. और इसके अलावा एक general principle जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि जब application चल रही होती है and when it is in production, तो यूजर जो इनपुट एंटर करता है उसको हमेशा वैलिडेट और चेक करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन बी द सोर्स ऑफ मेनी अटैक्स एज वेल, जिस तरह हम आगे देखेंगे. सो नाउ लेट्स सी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जिसको OWASP भी कहते हैं, OWASP, ये क्या चीज है? द ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट यानी OWASP इज एन ओपन कम्युनिटी डेडिकेटेड टू enabling organizations to develop, purchase and maintain applications that can be trusted. At OWASP, you will find free and open application security tools and standards, complete books on application security testing, secure code development, and security code review, standard security controls and libraries, locally organized chapters worldwide, cutting-edge research, extensive conferences held worldwide, mailing lists, and much more, which is available at www.owasp.org. So OWASP is an initiative, एक open initiative है, और इंटरनेट के ऊपर ये साइट है owasp.org. You should actually go and visit this website because they have a lot of information and they actually develop the standards, the tools, the guidance, the literature, ताकि organizations जो हैं वो इस तौर पे ट्रेन हो सकें कि उन्होंने अपनी applications को किस तरीके से secure करना है. आप इसको owasp.org को ज़रूर जो है study करें, and next time in the next lecture we will also look at the OWASP top 10. So now it's actually time to recap and close the lecture for today since we are running out of time. आज हमने जिन टॉपिक्स को स्टडी किया, हमने ये देखा कि एक एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है और उसकी सिक्योरिटी जो है एप्लीकेशन की, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमने ये देखा कि एप्लीकेशन के अटैक्स जो हैं उसके बहुत सारे रिस्क्स होते हैं और उन रिस्क्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारे पास एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए. एंड वी सॉ के एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में हम वी गेट स्टार्टेड, उसके बाद हम गैप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, आफ्टर दैट हम सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं, एंड देन वी मेक सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एंड टू इम्प्लीमेंट दोज कंट्रोल्स हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने डेवलपर्स को, एंड फाइनली हम ऑपरेशंस के अंदर जितने
लाइफ साइकिल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं हम उन सबको उठा के देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उनके अंदर सिक्योरिटी जो है एम्बेडेड है. एंड इन द कंप्लीट SDLC which is the secure development life cycle of the project, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है. नाउ जब हम इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के स्टेप्स को उठाते हैं तो देन वी सॉ के देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू हार्डन द एप्लीकेशन. और उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे स्टेप्स हैं. एंड फाइनली इन टुडेज लेक्चर हमने क्लोज किया विद द OWASP, with the definition of OWASP, the Open Web Application Security Project, which is a wonderful resource and has tremendous amount of information कि applications को secure किस तरीके से किया जाता है. I would like to thank you for attending the very interesting lecture that we studied today. और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि ये जो टॉपिक है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, ये बहुत हॉट टॉपिक है. एंड इन द वर्ल्ड देयर इज अ बिग डिमांड फॉर डेवलपर्स एंड फॉर अदर रिसोर्सेज दैट नो हाउ टू सिक्योर द एप्लीकेशंस. दिस इज ए स्किल जो कि वाइडली अवेलेबल नहीं है. ये बड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. एंड इफ यू वुड लाइक टू मेक दिस your core concentration area while you are studying, that will be excellent. You can take a lot of guidance from OWASP.org. I would like to thank you very much for attending the lecture for today, and I'm looking forward, inshallah, to see you next time. Thank you very much. Allah Hafiz.